हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਸਟਾਫਿੰਗ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 5th ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਸਟੈਪਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ 5th ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋਥ। ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, training refers to the process which enables a person to improve his her skills and abilities for performing a particular job by learning new skills and knowledge। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ EMPLOYE ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ। ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ CA ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ CA ਦੇ, IPCC ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। IPCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਰਸ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ IPCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ CA ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕਿੱਲਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, CA ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ CA ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਵਰਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇਗੇ। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट दी वेस्टेज। हुण देखो ट्रेनिंग जो है की हैगा, तुसी जो एक पर्टिकुलर काम आपदे एम्प्लॉय नूं असाइन कीता हैगा ओहदे वास्ते उहनूं ट्रेन करना, उहनूं ओहदी नॉलेज एनहांस करना, ओहदी स्किल्स वधा देणियां। जदों ओहदी किसी काम दे विच नॉलेज वध जूगी, ओहदी स्किल्स वध जाणगियां तो ओहदे नाल की होगा, ओहदी उस काम दे विच जो एफिशिएंसी है वो भी वध जूगी, इफेक्टिवनेस है वो भी वध जूगी। तो जिहड़ा परसन
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਊਗਾ? ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਸਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਵੇਸਟੇਜ। नेक्स्ट फीचर है रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग हमेशा जो होंगी है कि वो स्पेशल जॉब यानी कि एक पर्टिकुलर वर्क दे रिलेटेड ही होंगी हैगी। तो जो भी तुसी कोई पर्टिकुलर काम सिखा रहे होंगे मतलब तुसी उस काम की ट्रेनिंग दे रहे हो बंदे नूं। बेनिफिशियल टू बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लॉयज। जे तुसी ट्रेनिंग देंदे होंगे तो उदा दोनों नूं ही फायदा हैगा। ऑर्गेनाइजेशन नूं की फायदा हैगा कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाऊगा। इंप्लॉयज जो है उन्हां दा की होगा, उन्हां दी नॉलेज, उन्हां दी स्किल्स, उन्हां दी एबिलिटीज इंक्रीज होणगियां जो कि उन्हां दी करियर एडवांसमेंट दे विच हेल्प करनगियां। सो ट्रेनिंग प्रोवाइड करन नाल दोनों नूं ही बेनिफिट हुंदा, ऑर्गेनाइजेशन ते एम्प्लॉयज। कंटिन्यूअस प्रोसैस है, ये कदे भी ना खत्म होने वाला प्रोसैस है। नहीं है कि एक बार एक काम सिखाता ते गल खत्म नहीं, जिवें जिवें भी तुसी टास्क दे जाओगे एम्प्लॉयज नूं, क्योंकि हुण देखो आपां पढ़िया सीगा ये भी चीज कि करियर प्लैनिंग करनी है। किसी भी परसन नूं जिस पोस्ट लिए तुसी अपॉइंट किया सीगा उसी पोस्ट ते नहीं रखना, आपां उहदे करियर दी भी प्लैनिंग करनी है, उहदी ग्रोथ करने बारे सोचना हैगा। ते जदों तुसी ये चीज सोचोगे, उहनूं प्रमोशनस दोगे, उहनूं वध रिस्पोंसिबिलिटीज, उहनूं वध औखे टास्क दोगे तो उहदे नाल तुहानूं उहनूं ट्रेनिंग भी देनी पऊगी उन्हां टास्क रिलेटेड जो भी तुसी नवें टास्क दे रहे होगे। सो ट्रेनिंग की हैगा एक कंटिन्यूअस प्रोसैस हुंदा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ट्रेनिंग जो होंगी है वो पर्टिकुलर जॉब दे रिलेटेड होंगी है ते डेवलपमेंट जिहड़ी होंगी है वो ओवरऑल हर एक स्फेयर दे विच ओवरऑल हर एक स्फेयर नाल रिलेटेड होंगी है कि ये ओवरऑल ग्रोथ की गल करदी है, ये एक काम दे विच ग्रोथ की गल करदी है। ट्रेनिंग ते एजुकेशन भी डिफरेंट है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। एजुकेशन जो भी थोनू थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी तुसी किसी पर्टिकुलर काम बारे थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे होंगे वो एजुकेशन है। उस थ्योरेटिकल नॉलेज नूं प्रैक्टिकली अप्लाई करन वास्ते जदों तुसी नॉलेज लैंदे होगे, स्किल्स सीखदे होगे, उहनूं आपां की नाम दित्ता हैगा, ट्रेनिंग दित्ता हैगा। ते ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एजुकेशन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो ट्रेनिंग ते एजुकेशन भी की हुंदे हैगे, दोनों डिफरेंट हुंदे हैगे। सो क्लीयर होए फीचर्स ऑफ प्लैनिंग, प्लैनिंग दे सॉरी प्लैनिंग हैगी, ट्रेनिंग दे फीचर्स क्लियर होए थोनू। ट्रेनिंग की हैगा एक इन्वेस्टमेंट है, नॉट दी वेस्टेज। रिलेटेड टू स्पेशल जॉब्स हैगा, ऑर्गेनाइजेशन ते एम्प्लॉय दोनों नू फायदा हुंदा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रेनिंग ते डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ते ट्रेनिंग ते एजुकेशन भी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नेगे। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। हुण इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की हैगा, थर्ड फीचर आपां पढ़ियागा कि ट्रेनिंग करन नाल दोनों नू ही फायदा हुंदा, ऑर्गेनाइजेशन नू भी ते इंप्लॉयज नू भी। तां ये ऑर्गेनाइजेशन नू फायदा की होगा, ओ पॉइंट्स ने, ये इंप्लॉयज नू की फायदा होगा, ओ पॉइंट्स ने। पहला ये पढ़ लेने, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट्स। देखो ट्रेनिंग करन दा की फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन नू। एक तां ट्रेनिंग जो होंगी है ज्यादा, अब पहले ही पढ़ लिया कि ट्रेनिंग ते जो पैसा खर्च किया वो वेस्ट नहीं होंदा, कि होंगी इन्वेस्टमेंट। सो मोस्ट इकोनॉमिकल। दूसरा की हो रहेगा, जदों तुसी इंप्लॉयज नू ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे किसी भी काम दे रिलेटेड, उन्हां दी उस काम दे विच एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वध रही है। जे एफिशिएंसी वधूगी तो की होगा, जेडे भी मटीरियल तुसी यूज कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह तुसी यूज कर रहे होंगे, उन्हां नू तुसी ऑप्टिममली यूज करोगे। तो ऑप्टिममली यूज करोगे तो उन्होंने की होगा, बेस्ट यूज होगा। तो ये पहला बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट,
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੌ ਸਿੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪਊਗੀ। reduced labor turnover and absenteeism, labor turnover ਉਹੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ट्रेंड एम्प्लॉय ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਨਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕੀ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEE ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਾਸਕ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ। इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, ये आप हुणी पढ़ लिया कि इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो उन्होंने एफिशिएंसी भी वधूगी ते उन्होंने काम करने की क्षमता भी वधूगी जो आप उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी। जे उन्होंने काम ही नहीं आंदा फिर वो बार बार पूछ के करेंगे सीखणगे तो उत्थे टाइम लगूगा। ठीक है, जे उन्होंने काम आंदा है तो स्पीडली सारा काम कर देंगे तो उन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज हो जू काम करने की। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, जेड़ा नौ सिक्ख्या बंदा है ते जेड़ा फुली ट्रेंड बंदा आपदे काम दे विच किहदी वैल्यू वध होगी, नौ सिक्खिए नूं वध पैसे मिलणगे कि ट्रेंड बंदे नूं वध पैसे मिलणगे। ऑब्वियस जी गल है, जेड़ा काम दे विच प्रॉपरली ट्रेंड बंदा हैगा उहनूं वध पैसे दिते जाणगे, उहदी सैलरी वध होगी। ते ट्रेनिंग प्रोवाइड करन नाल एम्प्लॉयज दी जो मार्केट दे विच वैल्यू हैगी ओह वध जांदी है, मतलब कि उन्हां नूं उन्हां दे काम वधे सैलरी वधिया मिलण लग जांदी है। फ्यूअर एक्सीडेंट्स, जेडे वर्कर्स वगैरह मशीनरी वगैरह ते काम करते जो उन्होंने प्रॉपरली मशीनरी ऑपरेट करनी आंदी होगी तो उहदे नाल एक्सीडेंट्स जेडे हैगे ओह काफी रिड्यूस हो जाएंगे। जे मशीनरी आपां नूं प्रॉपरली ऑपरेट करनी नहीं आउंदी तो उत्थे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज जॉब सैटिस्फैक्शन अमंग दी एम्प्लॉयज क्रिएट होंदी है कि किवें देखो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उन्होंने मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो इहदे नाल की होगा उन्हों का मोराल भी इंक्रीज होगा। जो वो काम वधिया करेंगे तो उहदे नाल जॉब सैटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी। जॉब सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी तो लेबर टर्नओवर भी घट जाऊगी। तो आ कुछ बेनिफिट सीगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करन दे एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ दोनों बंदियां नूं। क्लीयर हो गए। उदों बाद हुण मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग की नेंगे, तो ब्रॉडली दो मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग दे अपने कोले, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मैथड एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मैथड। थोड़ा जा पोजीशंस दे विच अलाइनमेंट दे विच फर्क आ रहा है। ठीक है, ऑफ दी जॉब ते ऑन दी जॉब। हुण ऑफ दी जॉब ते ऑन दी जॉब की हैगा, ऑन दी जॉब जदों तुसी ਉਹ टास्क जो जॉब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है ਉਹ परफॉर्म कर रहे होगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ऑन दी जॉब। लेकिन जो तुसी पहला सीख के फिर टास्क परफॉर्म करते हो वो हुंदा हैगा ऑफ दी जॉब। लर्निंग वाइल डूइंग, जो काम कर रहे हो उदों सीख रहे हो ऑन दी जॉब। लर्निंग बिफोर डूइंग ऑफ दी जॉब, काम करन तो पहला सीखना इज ऑफ दी जॉब। हुण ऑन दी जॉब दे विच अगे तीन तरह दे आंदे हैगे टाइप्स, ते ऑफ दी जॉब दे विच अगे एक तरह दी टाइप
आउंदी हैगी। सब तो पहला हुंदी हैगी इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन। ते जेड़ा आप ओरिएंटेशन वाला पॉइंट पढ़ा सी ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि इंडक्शन ट्रेनिंग। जदों तुसी कोई नवा इंप्लॉई आंदा हैगा, ओनू अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ां होंदियां है, टास्क की होगा, जो सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, हर एक चीज़ ना जो उन्होंने तुसी की कराने होंगे, इंट्रोड्यूस करवाने होंगे, उस तरह की ट्रेनिंग आप की कहने हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। तो कदे भी आए नहीं होंदा कि काम शुरू करन तो पहला आप ये सारिया चीज़ां दसांगे, नहीं, हमेशा जो भी नवा इंप्लॉई आंदा है उन्होंने काम के नाल नाल आप ये सारिया चीज़ां दस दिंदे सो दैट यह किसदी कैटेगरी दे विच आंदा है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की कैटेगरी दे विच आंदा है। देन नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो देखो मोस्टली कई बारी की हुंदा ना, कई बारी नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा यही हुंदा हैगा। तुसी हमेशा नोट किया होगा कि जदों भी अपने घरे कोई प्लंबर आंदा है या फिर कोई इलैक्ट्रीशियन आंदा है, इन्हां नाल एक बंदा इहो जिहा आंदा हैगा जिहड़ा कि काम सीख रहा हुंदा है। एक मेन बंदा आऊगा प्लस एक उन्हां दा की आऊगा, स्टूडेंट आऊगा जिहड़ा कि काम सीख रहा हुंदा, इलैक्ट्रीशियन दा। प्लंबर दे नाल एक बंदा आऊगा जिहड़ा प्लंबिंग दा काम सीख रहा हुंदा। जिहड़े इहो जे बंदे हुंदे ना, प्लंबर इलैक्ट्रीशियन दे नाल आंदे गे ते नाल काम सीख रहे हुंदे गे, ओ आंदे गे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स दे अंडर। ये एक मास्टर हैगा, मास्टर दे अंडर रह के तुसी ओदे नाल काम ते जाके ओदे नाल की कर रहे होगे, नाल काम सीख रहे होगे। ते ये आंदा हैगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स दे विच। देन आ जांदा हैगा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीए वाली एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਏ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। सिमिलरली लॉयर्स, डॉक्टर्स एक ही करते हैं पहला कॉलेजेस दे विच सारी पढ़ाई करते हैं, दैन उस तो बाद पढ़ाई करन तो बाद प्रैक्टिकली किवें जो लॉ प्रैक्टिस की जाती है, वो काम सीखते हैं, वो भी किते विच आंदे हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग दे अंडर आंदे हैं। जिहड़ा परसन ये ट्रेनिंग लैंदा हैगा उहनूं आपां इंटर्न दा नाम दिन्ने हैगे। ते मोस्टली कंपनीज की करदियां इन्हां इंटर्न्स नूं स्टाइपेंड्स पे कर दिंदियां कि मतलब कुछ ना कुछ सैलरी पे कर दिंदियां जो भी ये काम करते। ते ये तीन तरीके हुंदे हैगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दे। ऑफ दी जॉब दे विच एक आंदा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे विच की हुंदा हैगा कि जो जॉब जो काम तुसी इंप्लॉय नूं असाइन करना है, फॉर एग्जांपल तुसी कोई एक पर्टिकुलर टाइप दी मशीनरी जो है ओदे ते काम सिखाना है, काम करवाना है इंप्लॉयज नूं कि एक इंप्लॉय ने एक पर्टिकुलर टाइप की मशीनरी जो है वो ऑपरेट करनी होगी। हुण वो ऑपरेट करन तो पहला तुसी की कर रहे होगे, आपदे ट्रेनिंग सेंटर दे विच एक डमी मशीन दे इंप्लॉय नूं ट्रेनिंग दे रहे हो, मशीन बारे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किवें किवें मशीन चलूगी, किवें किवें ये ऑपरेट करूगी। तो उस तरह की ट्रेनिंग नूं आपां नाम दिन्ने वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कि जदों एक्चुअल काम करन तो पहला तुसी आपदे ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर किसी भी होर जगह ते डमी चीज़ां नाल या फिर किसी भी तरीके नाल उस मशीन दे उस इक्विपमेंट बारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट बारे हैगा ओदे बारे नॉलेज दिन्ने, ओदे उन्हें ऑपरेट करना सिखाने होगे। तो उस तरह की ट्रेनिंग नूं आपां नाम दिन्ने हैगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो हमेशा देखो डॉक्टर्स जिहड़े हुंदे हैगे कदे भी जिहड़े डॉक्टर सीख रहे हुंदे हैगे काम उन्हां नूं जो ओरिजिनल बंदा हुंदा हैगा ओदे ते ऑपरेशन करके नहीं सिखाया जाता। हमेशा पहला उन्हां नूं डमीज ते डेड बॉडीज हो गए या डेड बॉडीज दे उत्ते कट लगा के इदां उन्हां नूं चीज़ां सिखाईयां जांदियां। तो किदे विच आ जांदियां ये सारियां वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे अंडर ही आ जांदियां कि जदों तुसीं एक्चुअल काम दी प्लेस तो पहला ही उन्हां नूं सारियां चीज़ां सिखा दिंदे हो, वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। इत्थे की हैगा तिन्हां दे विच बंदा काम दे नाल नाल ही सारियां चीज़ां सिख रिहा हैगा। क्लियर हो गया इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप ते इंटर्नशिप एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। उस बाद नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट आ गया। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ
इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग की कहता है एक पर्टिकुलर काम सिखाना है, डेवलपमेंट की कह रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट कर दो बंदे दी पर्सनैलिटी तो लैके हर एक चीज ओदी की कर दो, हर एक चीज दे विच हर एक एरिया दे विच ओदी की कर दो ग्रोथ कर दो। वो की हुंदी है डेवलपमेंट की ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट, किते किसी एक पर्टिकुलर काम च नहीं हर एक रिस्पेक्ट हर एक काम दे विच ओदी की करनी है आपां ग्रोथ करनी है, उन्होंने आपां क्या जांदा हैगा डेवलपमेंट। हुण नीड फॉर इंप्लॉय डेवलपमेंट, इंप्लॉयज दी डेवलपमेंट करन दी लोड़ आपां नूं की है, तो कुछ पॉइंट्स दस्से होएगे। टू मेक दी मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलपमेंट करन दी लोड़ तां हैगी ताकि जेडे मैनेजर्स हैगे उन्हां दी एबिलिटी इंक्रीज होवे ताकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर पान। टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर दी मैनेजर्स, मैनेजर दी प्रमोशन ली देखो जे जेड़ा बंदा प्रमोट तुसी किनू करोगे, प्रमोट आप उस बंदे नू करांगे जेड़ा हर एक रिस्पेक्ट दे विच हर एक एरिया दे विच की होवे परफेक्ट होवे, हर एक एरिया दे विच उन्हें नॉलेज होवे, उस बंदे नू आपां की करांगे प्रमोट करके हायर पोजीशन ते देवांगे। ते डेवलपमेंट करन दा बेसिकली पर्पस ये भी हुंदा है कि आपां मैनेजर्स नू प्रमोट करके हायर पोजीशंस देइए। टू जनरेट एबिलिटी इन दी मैनेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मैनेजर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट दे विच रिलेशंस क्रिएट कर पान, इदां दी उन्हां दे विच एबिलिटी जनरेट करन दा भी मेन मोटिव हुंदा, इदां दी एबिलिटी जनरेट करन लई भी आपां की करदे डेवलपमेंट करदे। टू क्रिएट एबिलिटी इन दी मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, मैनेजर्स इफेक्टिव डिसीजंस लैन तां करके भी किया जाता है। टू इंप्रूव दी वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखो जो सारा कुछ होगा सारी चीज़ें होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए इसलिए भी आप डेवलपमेंट करते हैं। टू इंक्रीज दी मार्केट वैल्यू ऑफ दी मैनेजर्स, वही गल आ गई ट्रेनिंग नाल दी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट दे विच तां हर एक एरिया दे विच की हो रही है ग्रोथ हो रही है इंप्लॉय दी, फिर भी मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये कुछ पॉइंट सीगे जिहड़े आपां नूं दसदे कि डेवलपमेंट करन दी आपां नूं लोड़ क्यों है। देन उदू बाद लास्ट ते अपने कोले बचदा है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हुण ट्रेनिंग ते डेवलपमेंट दे विच की डिफरेंस है, वैसे तो आपां सारा पढ़ी है पर एक बारी बुक वाइज देख लो की डिफरेंस हैगा। मीनिंग इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, की हैगा एक प्रोसैस हैगा जिहदे विच आपां नॉलेज ते स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कर देंगे इन पर्टिकुलर जॉब। इत्थे ऐड कर लियो कि पर्टिकुलर जॉब दे विच आपां उन्हां दी नॉलेज ते स्किल ऐड कर दें। इट रेफर्स टू लर्निंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। एक ही हैगा एक प्रोसेस हैगा जिहदे विच लर्निंग ते ग्रोथ दोनों हो रही है। ओरिएंटेशन जिहड़ा हैगा जॉब ओरिएंटेड, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब नूं ध्यान च रख के ही ट्रेनिंग दी जाती हैगी। एक डेवलपमेंट जो होंगी है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसैस होंगी है, यानी कि ये ओवरऑल ग्रोथ की जाती है ताकि जी वो करियर है वो वधिया हो, करियर डेवलप हो। ड्यूरेशन, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है, यह एक फिक्सड ट्रेनिंग ड्यूरेशन लिए ही दी जाती है, फिक्स पीरियड लिए ही दी जाती है। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसैस है जी कि थ्रू आउट दी लाइफ जो है पर्सन की वो चलता रहता है। ਇਹਦਾ ऑब्जेक्टिव की हैगा कि जेड़ा भी जॉब एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है वो वधिया तरीके नाल परफॉर्म कर सके। ਇਹਦਾ ऑब्जेक्टिव की हैगा कि ਉਹਦੀ ओवरऑल ग्रोथ हो सके। ये एक नैरो कंसैप्ट है तो यह एक की हैगा वाइडर कंसैप्ट है। एक्चुअल दे विच ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट दा ही की हैगा एक पार्ट हुंदा है। डेवलपमेंट एक वाइडर कंसैप्ट है तो ट्रेनिंग की एक नैरो कंसैप्ट है तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दा ही एक हिस्सा है। सो दैट्स इट, ये सीगा अपना अज दा टॉपिक ते अपना चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होया। थैंक यू सो मच। होपफुली थोनू सारा चैप्टर क्लीयर हो गया होगा, सारा चैप्टर समझ भी आ गया होगा। हुण इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो थोड़ा कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सैक्शन दे विच अपनी क्वेरी ड्रॉप करियो ते मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ी वो क्वेरी सॉल्व कर पावां। ते हुण मिलांगे नैक्सट लेक्चर दे विच। हाँ प्लीज़ हुण एग्जाम्स नेड़े आ रहे हैं तो प्लीज़ नाल पढ़ना शुरू कर दो ते जो भी चैप्टर आप डिस्कस कर रहे हैं नाल ही आपदा पढ़ के डाउट्स नाल ही पूछी जाओ, ठीक है। हुण आपां नैक्सट लेक्चर दे विच मिलांगे ते नैक्सट लेक्चर दे विच नवां चैप्टर आपां शुरू करांगे। मिलदे हैं नैक्सट लेक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।